morning everyone. Today's Youth Parliament session of Universal Convent Senior Secondary School is now ready to begin. माननीय सदस्यगण, माननीय स्पीकर, Good morning everyone. I welcome you all to the Youth Parliament session and I hope it will be fruitful. We begin today's session with oath and affirmation. Secretary General, please. Now, the newly elected members of the Parliament will take the oath of affirmation. First of all, I would like to call Mr. Sakshan Sharma, who stands elected from Aligarh constituency, will take the oath of affirmation. In which language would you like to take the oath? In English. Okay, sir, kindly proceed. I, having been elected as a member of lower house of Youth Parliament, I swear in the name of God that I will bear true faith and to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty which upon I am about to enter. Now, I would like to call Ms. Bhavna Nehra, who stands elected from Shimla constituency. Madam, would you like to take the oath or affirmation? Oath. In which language would you like to take the oath? In Hindi. Okay, ma'am, kindly proceed. मैं भावना मेहरा जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पर कौम में ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँ। माननीय सदस्यगण, आज हम 3 माह के पश्चात मिल रहे हैं। मुझे यह कहते हुए अत्यंत ये दोनों ही सच्चे राजनेता तथा सच्चे देशभक्त थे। दोनों ने ही अपना जीवन देश और देशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित। महान व्यक्तियों के निधन से पूरे देश को बड़ी क्षति हुई। प्राइम मिनिस्टर प्लीज। आज मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि श्री विजय कुमार मल्होत्रा व श्री शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वे दोनों ही महान एवं सर्वप्रिय हस्तियां थी। श्री विजय कुमार मल्होत्रा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। वे 5 बार संसद के सदस्य भी रहे। उनका भारतीय जनता पार्टी के उत्थान में बहुत योगदान रहा। वहीं श्री शिबू सोरेन जी आदिवासी वर्ग से आते थे। उन्होंने दलितों, गरीबों, पिछड़े व आदिवासी वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए काम किया व झारखंड राज्य उनके द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन भी किया गया। प्रार्थना रहेगी कि वे पुण्यात्माओं को अपने चरणों में स्थान दे व उनके परिजनों को अपनी दुखों सहने की शक्ति दे। Leader of opposition, please. Through the medium of Honorable Speaker, ma'am. This is to inform with great disappointment and heavy heart that we have lost 2 great personalities. Our former sports administrator and parliamentarian, Mr. Vijay Kumar Malhotra, on 30th September 2025, and former MP and former Chief Minister of Jharkhand, President of JMM, Mr. Shibu Soren, on 4th August 2025. Their death is an irreparable loss to our nation. He was a gifted orator and a man with kind heart. Mr. Malhotra had a clean and spotless image throughout his distinguished
distinguished career. Mr. Shibu Suri was a towering intellectual and he distinguished himself by effectively handling important issues. Both made immense contribution to public issues from time to time. Today, they are not with us anymore. My condolences, along with the House, are to their families. I pray to the Almighty to give peace to the departed souls. Now, I would like to request everyone in the house to stand for a 2-minute condolence. Yes, ma'am. Now, the Prime Minister will introduce the newly elected members of the Cabinet. Speaker ma'am, I would like to introduce Prime Minister, please. Honorable Speaker ma'am, I would like to introduce some newly elected members in my cabinet. Minister of Youth Affairs and Sports, Mr. Jai Singh Rishi. Minister of Law, Ms. Bhumika Mehta. Minister of Surface Transport, Ms. Ananya Joshi. Now, the question now begins. Question number 121, Mr. Nakshi Bhatt. Honorable Speaker, ma'am, will the Minister of Road Transport and Highway be pleased to state whether the government has formulated any asset monetization strategy to attract private investments in road infrastructure? रोड बेच दिया अडानी को, ये देश बेच सरकार है, इनके हवाले देश रहने देंगे, ये देश ही बेच डालेंगे। Speaker, ma'am, you related? And if so, the details thereof, along with the instruments and models identification and the total length of national highway asset monetized under the National Monetization Pipeline will be so. Yes, ma'am, the government has framed an asset monetized strategy for road sector. The government monetizes highway assets through 3 modes: toll, operate and transport, After giving the answer, let the House turn. and secularization. The fund raised through TOT mode is transferred into the Consolidated Fund of India, which is received through clawback under budgetary support. यदि जरूरत पड़े तो सरकार शेर पर जान से पीछे नहीं हटेगी। The number of government council in a country at present. Whether the posts of government council are vacant or there is a need to appoint more government council, and if so, the details thereof. Whether the government purpose to set up a center. Honorable Speaker ma'am, according to the National Legal Services Authority Regulations 2010, is a proper system for selecting and appointing panel lawyers who provide legal aid. These lawyers are chosen by the chairman of the legal services institutions like the Attorney General, Advocate General or Government Pleader. At present, 61,295 lawyers are empaneled at the state and district level across the country to offer free legal assistance to those who are eligible. The current number of lawyers is considered as per the workload. To make justice more accessible and promote peaceful dispute resolution, more than 500 mediation centers have been established across India. During the year 2018-19, over 90,000 cases were successfully settled through mediation, proving it to be a peaceful and successful method for delivering justice amicably. कि वर्तमान वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भारी क्षति हुई है। यदि हो तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्या इन आपदाओं के कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय दलों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया था? यदि हो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
माननीय अध्यक्ष महोदया, का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय यह मंत्रालय किसी भी आपदा के कारण हुए नुकसान का डेटा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखता है। लेकिन हमारे राज्य के साथ तो केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। माननीय ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जो हमसे मांगा जाएगा वो हम देंगे। राष्ट्रीय प्रबंधन नीति के अनुसार जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाते हुए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2024-25 के दौरान नवंबर 2024 तक आपदा से हुए नुकसान के आकलन के लिए असम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, केरल, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए कुल 12 IMCT गठित की गई है। Question number 124, Ms. Gayatri, please. Speaker ma'am, will the Minister of External Affairs will be pleased to state whether the ministry has taken any measures to improve awareness and accessibility of its internship program, particularly in rural and semi-urban areas across the country? If so, the details of outreach methods adopted for the same. Whether the ministry has taken any partnership with education institutions, district authorities in this regard. If so, the details of and the number of interns selected under the said program since its inception in. Minister of External Affairs, please. Honorable Speaker, ma'am, A to C, a statement is laid on the table of the House. The internship program follows an online application process on the internship. The portal is publicly accessible and all aspirants need to register on the portal to apply for the program. No formal partnership with the education institution and district authorities are currently placed in this regard. Question number 125, Ms. Ankita Mehra. Honorable Speaker, ma'am, will the Minister of Environment, Climate Change and Forest be pleased to state whether the government is aware that the forest fire cases are increasing at alarming rates in many states? If so, the number of forest fire cases and loss of wildlife reported during last 3 years statewide. Whether special teams under NDRF has been formed as decided by government. If so, the detailed theory along with the role and function special teams whether the government has in any consultant to prevent forest fire. If so, the details thereof. Minister of Forest and Environment, please. Honorable Speaker, ma'am, seasonal forest fires occur every year due to various national and anthropogenic reasons, including accumulation of inflammable materials such as dry leaves, twigs, pine needles, etc. Most of the forest fires in the country are ground fires in which ground report. The total number of forest fires detected by the Forest Survey of India is 2,03,544, while in the previous forest fire season, November 2022 to June 2023, number of forest fires detected by the Forest Survey of India was 2,12,249, which is more than the incidents reported in forest fire season November 2023 to June 2024. The statewide number of forest fire detected by the Forest Survey of India (FSI) using satellite-mounted sensors in the last 4 forest fire seasons, November 2020 to June 2024, are given in annexure. No estimation of loss of forest and wildlife due to forest fire in the country has been made by the ministry. Mr. Speaker, ma'am, मैं इस सदन में एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहती हूँ जो हर घर, हर दुकान और हर जेब को छू रहा है।
भारत की खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ते हुए टैक्स का बोझ। अर्थव्यवस्था गिर रही है और सरकार सिर्फ जुमले सुना रही है। आज देश की हालत ये है, जीडीपी ग्रोथ सिर्फ पेपर में है, ग्राउंड पर सिर्फ स्ट्रगल। रोजगार कहने वाली सरकार से हम रोजगार की क्या उम्मीद कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट 50 साल के रिकॉर्ड के आसपास पहुंच गया है, लेकिन सरकार की रिपोर्ट्स में अमृत काल लिखा जा रहा है। किसानों के पास दाम नहीं, युवाओं के पास काम नहीं और बीच में सरकार के पास बस भाषण है। टैक्स बढ़ा लेकिन सुविधाएं घटी। आम आदमी के लिए तो हर दिन एक नया टैक्स। पेट्रोल डीजल पर रिकॉर्ड एक्सेस ड्यूटी, जीएसटी पर रेट हाइक, टोल टैक्स हर 50 किलोमीटर पर और ऊपर से सर्विस चार्ज नाम का नया झांसा। सवाल ये है, टैक्स बढ़ता जा रहा है लेकिन सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल्स का क्या हाल है? चौखटिया में बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ सरकार चैन की बंसी बजा रही है। आप लोगों ने उत्तराखंड में आप लोग एक ही परिवार का भला कर रहे हैं। क्या सरकार बता सकती है कि आम आदमी का पैसा कहाँ जा रहा है? बिजनेस चलाए या टैक्स फॉर्म भरे, ये समझना मुश्किल हो गया है। जीएसटी पोर्टल है, रूल्स कंफ्यूजिंग और पेनल्टीज अनलिमिटेड। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, लेकिन ग्राउंड पर लोग कहते हैं टैक्स इंडिया, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पर लगता है टैक्स और हर कमाई पर लगता है ट्रैप। देश चलाने के लिए जुमले अर्थव्यवस्था डेटा से नहीं, लोगों के विश्वास से आती है। आज देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर है। आपके जमाने में कहाँ थी? आज लोगों का भरोसा टूट रहा है क्योंकि मेहनत करने वाला दुखी है और सिर्फ अंबानी अडानी की जेबें भर रही है। देश 56 इंची सीने से नहीं चलता, देश समझदारी से चलता है। किसान परेशान है, मजदूर हैरान है, व्यापारी उदास है और सरकार कहती है सब चंगा सी। हमें टैक्स पे टैक्स नहीं, रोजगार और विश्वास चाहिए। मैं सरकार से अपील करती हूँ, आर्थिक नीतियां बदलें, टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई करें और लोगों को रिलीफ दें। डेवलपमेंट के नाम पर लूट नहीं, रोजगार और ईमानदारी चाहिए। सरकार को याद रखना चाहिए, देश अमृत काल में तब जाएगा जब हर नागरिक आर्थिक समृद्धि उस तक पहुंचे और वह सशक्त महसूस करे। दीक्षा प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, टैक्स के नाम पर विपक्ष हमारी सरकार टैक्स कम करके लोगों को राहत दिलाती है। टैक्स सच में बढ़ रहा है। आप बताइए, जब 12 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स है तो फिर टैक्स बढ़ी है? नरेंद्र पैसे पेट पर नहीं लगते हैं। आपके राज में टैक्स का पैसा कहाँ जाता था? जीजा जी को खाने को नहीं मिल रहा है। 10 साल से तो आपकी सरकार है, आगे कोई आरोप साबित हुआ नहीं। अगर टैक्स बड़ा है तो एग्जैक्ट स्लैब, एग्जैक्ट चीज, एग्जैक्ट ईयर बताओ, सिर्फ हवा में बातें क्यों? ये टैक्स पर हल्ला तो करते हैं पर टैक्स का हर एक पैसा देश के विकास में ही जाता है। और ये बताएं कि इनके समय ये पैसा कहाँ जाता था? और जहाँ बात है मेडिकेयर में टैक्स की, तो अब लाइफ सेविंग मेडिसिन आयात शुल्क पर पूरी छूट कर दी गई है, यानी कि 0% इंपोर्ट ड्यूटी। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ जो पूरे लोकतंत्र की जड़ को हिला सकता है। वोट चोरी। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के मत में होती है। वोट चोरी कोई छोटी मोटी हरकत नहीं, यह तो जनता की आवाज छीनने की कोशिश है। यह उस मेहनतकश इंसान की बेइज्जती है जो धूप में, बारिश में, लाइन में खड़े होकर अपने भविष्य पर बटन दबाता है। वोट चोरी सिर्फ मतपत्र नहीं चुराती, यह देश की उम्मीद
खुद वोटिंग प्रोसेस में गलतियां देखी। महाराष्ट्र में पता लगा है कि 5 महीने में 5 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे के बाद भारी वोटिंग हुई, लेकिन हमारा पोलिंग बूथ बोलता है 5:30 बजे के बाद कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी। इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों की हमें जरूरत थी उनके लिए बहाने बना रही। डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्शन नया कि नहीं दे सकते। महादेवपुरा का केस भी इसी मुद्दे का बड़ा सबूत है। इसमें बड़ा अजब नतीजा था, जिसमें 1,250 वोटों की चोरी 5 तरीके से हुई थी। डुप्लीकेट वोटर्स, फिर इनवैलिड फोटोज एंड मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। और इलेक्शन कमीशन ने इसमें पूरे प्रमाण को खत्म करने चली है। चुनाव की हर कतार में भरोसे की है लगी, जो चुरा ले वोट जनता का वो इंसान नहीं है खड़ी। वोट चोरी कोई खेल नहीं और देश से गद्दारी है, मतदाता की उंगली नहीं उसकी उम्मीद मारी है। स्याही उंगलियों पर लगे, दिल में अरमान लिए, हम वोट डालने निकले थे सपनों की उड़ान लिए। जो वोट चुराते फिरते हैं वो याद रखे ये बात, जनता जा गई तो फिर रोक न पाओगे उसका प्रहार। मिस दिव्या प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के समक्ष दृढ़ता से यह कहना चाहती हूँ कि भारत के लोकतंत्र में वोट चोरी नहीं हुई है, बल्कि कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया है। निर्वाचन आयोग ने 2025 के लोकसभा चुनाव के बाद 3 स्तर की जांच कराई। पहला, बूथ स्तर पर पोलिंग एजेंटों की साक्षात्कार रिपोर्ट। दूसरा, राज्य निर्वाचन कार्यालयों की पुनर्समीक्षा चाहिए, ना कि कहानियां। चुनाव में 1.4 लाख से अधिक मतदान केंद्र में लाइव रिकॉर्डिंग हुई। हर वेबसाइट पर हर एक बूथ का फुटेज उपलब्ध कराया गया। अब सवाल ये है कि जिस प्रक्रिया में हर वोट पोलिंग लाइव हो रही हो, उसमें आगे वोट चोरी कैसे हो सकती है? विपक्ष के अनुसार वोट चोरी हुई है, मगर केंद्र की निगरानी में भी वोट चोरी का आरोप लगाने वाले विपक्ष झूठे हैं। ये केवल इनकी कल्पना शक्ति का अभ्यास है। महोदय, प्रत्येक केंद्र पर वीवीपैट का क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ। देश के 65,800 केंद्रों पर वीवीपैट का मिलान 100% सही मिला। अगर वोट चोरी हुई होती तो 65,800 में से एक भी वोट शामिल नहीं मिलता, मगर ऐसा कहीं देखा नहीं गया। अगर वोट चोरी हुई थी तो क्या कारण है कि कुछ राज्यों में विपक्ष की जीत हुई? कुछ सीटों के लिए बेहद करीबी मुकाबले हुए। कई स्थानों पर प्रत्याशी वोट से हारे और जीते। अगर ईवीएम चोरी करती तो हर जगह बस एक ही दल जीतता, मगर यहाँ विविधता है। पर विशेष समुदाय को परेशान कर रही है। एसआईआर में 94% रिकॉर्ड 3 स्तरीय सत्यापन से गुजरे, जिनमें आज मैं किसी के इशारे पर नहीं, जनता के हक पर बोल। आज देश के हर नागरिक से उसका अधिकार छीना जा रहा है। वोट चोरी का ऐसा खेल चल रहा है जिससे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा बेंगलुरु सेंट्रल सेगमेंट, जहां 6.5 लाख असली वोटर पर वहां 1,60,250 फर्जी वोट, डुप्लीकेट वोट 11,000, गलत पते वाले 40,000, एक पते पर ही बंद वोटर 30,000 और फॉर्म 6 का गलत वोट 33,000। कई व्यक्ति की आबादी से ज्यादा वोट पड़ गए। आयोग कहता है 5 बजे के बाद वोटों की बाढ़ आ जाती है, लेकिन आयोग सब ठीक है कह के भी पीछे हट जाता है। झूठ बोल रहे हैं। आपके समय में मतदान बैलेट पेपर से होता था, तब क्या लूट नहीं होती थी? तो चूहे खाकर बिल्ली हंस करने को चली है। ऐसा एक और वीडियो है जहाँ पे पत्रकार अमित यादव एक इंसान से बात कर रहे हैं जो ये बताते हैं उन्होंने यूपी में 6 बार बीजेपी को वोट दिया है। कानून क्या कहता है? इलेक्शन डिक्लेरेशन के 45 दिन के अंदर आपको वोट चोरी पर संदेह है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष का मुद्दा है वोट चोरी हुई है, लेकिन सच कहूं
जहाँ हर बूथ पर पुलिस, अधिकारी और जनता की नजर रहती है, वहाँ भला चोरी कैसे हो गई? अगर वोट चोरी होती तो परिणाम बदल जाते, कोर्ट में शिकायतें दर्ज होती, जांचें होती, लेकिन हुआ क्या? कोर्ट में सन्नाटा है और सोशल मीडिया पर शोर है। असली गुरु हर्षों का आरोप भी लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र को खतरा वोट चोरी से नहीं बल्कि झूठे प्रचार से होता है। जो हार को हजम न कर सके वो सच्चाई को चोरी करता है। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी, हर वोट सच्चा था, झूठ बस आरोपों में था। हमारा लोकतंत्र मजबूत है और कोई झूठ उसे हिला नहीं सकता। जब जनता ने साफ वोट दिया है तो हार का दर्द ईवीएम पर मत उतारिए। मैं आज इस सदन में खड़ी हूँ उस जनता की तरफ से जिसके सपनों पर हर महीने एक नया टैक्स, एक नया टैरिफ लगाया जाता है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि कब तक जनता के घरों का टैक्स वसूला जाएगा? सरकार कहती है ये टैरिफ विकास के लिए है, लेकिन मैं बोलती हूँ अगर विकास का मतलब है महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और महंगी दामों पर जीना, तो गरीबों के लिए ये विकास नहीं विनाश। पिछले 3 सालों में आयात पर टैरिफ में औसतन 18% की बढ़ोतरी हुई और उससे छोटे उद्योगों की लागत 22% तक बढ़ी। और नतीजा क्या? 20,000 से ज्यादा छोटे कारखाने बंद कर दिए गए। तो मैं बोलती हूँ कि क्या ये आत्मनिर्भर भारत है या आत्मनाशक भारत? सिर्फ सरकार की नहीं, ये जनता की भी है और जनता के हक की आवाज आज यहाँ गूंजे। अगर बाकी भी सुधार चाहिए तो टैरिफ नहीं, ट्रांसपेरेंसी लाइए, राजस्व नहीं, रोजगार लाइए और जनता पर बोझ न देकर उनसे उनका भरोसा लीजिए। मिस हर्षिता प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में अपनी सरकार द्वारा किए गए टैरिफ बढ़ाने के फैसले के पूर्ण समर्थन में खड़ी हूँ। सबसे पहले टैरिफ बढ़ाना किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर हम चाहते हैं कि भारत दुनिया का निर्माण केंद्र बने, तो क्या यह गलत है कि हमारे किसान, हमारे छोटे उद्योग, हमारे स्टार्टअप और हमारी फैक्ट्रियां सुरक्षित हो? अगर टैरिफ बढ़ाने से देश का उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े और पैसा देश में रहे, तो क्या यह राष्ट्र हित में नहीं? और टैरिफ बढ़ने से स्वदेशी उद्योग मजबूत होते हैं, रोजगार के नए अवसर बनते हैं, आयात पर निर्भरता घटती है और सबसे जरूरी आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होती है। मिस जानवी प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर मैम, आज मैं इस सरकार की ट्रेड पॉलिसी पर बात करने के लिए खड़ी हूँ। ट्रेड पॉलिसी नहीं, ट्रेड ट्रेजेडी, क्योंकि पॉलिसी शब्द भी इनके लिए काफी जेनरस लगता है। सरकार अच्छे दिनों का वादा करती है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स की हालत देखकर बताते हैं कि अमेरिका भारत का सच्चा दोस्त है, लेकिन वही अमेरिका हमारे ट्रेड बेनिफिट सस्पेंड करता है और ड्यूटीज बढ़ा देती है। यूएस, चाइना सबको पीछे छोड़ देते हैं। अगर स्पीचेस बस सबके रिकॉर्ड तोड़ रहे होते। इंडिया को अनाउंसमेंट नहीं, एक्शन चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं, पॉलिसी चाहिए, पोस्टर्स नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए, मजाक नहीं, सीरियस गवर्नेंस चाहिए। मिस रिया प्लीज। आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रहा है, लेकिन मैं विपक्ष को याद दिलाना चाहती हूँ कि हर नीति का उद्देश्य केवल तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता भी होता है। मानो कि कुछ वस्तुओं के दाम बढ़े, लेकिन विपक्ष से मेरा सवाल है, क्या थोड़ी सी महंगाई बुरी है अगर इससे भारत आत्मनिर्भर बनता है? जब हमारे किसानों की फसलें विदेशी सस्ते उत्पाद से कुचल रहे थे, तब क्या सरकार को चुप रहना चाहिए था? जब हमारे उद्योग ठप हो रहे थे क्योंकि विदेशी कंपनियां बाजार भर रही थी, तब क्या सरकार को हाथ पर हाथ धरे बैठा रहना चाहिए? India stood still. They mentioned that $250 billion trade deficit, but skipped the truth. Growing economies import more because their rising inflation stayed controlled and no extra tax burden was put on citizens. China dependence, no economy becomes self-reliant in a day. Duties have been increased, local industries supported, and
Atmanirbharta is not a journey. Atmanirbharta is not a slogan, it is a journey. And when we agree, that's why this government focuses on action, new trade agreements, manufacturing growth, digital leadership and global investor confidence. Of the British Parliament. They are the members of House of Commons. On the behalf of whole House, I welcome Mr. S. Shai, Ms. Chloe, and Ms. Barrett. They are the members of House representing the special force. We wish them a happy stay in our country. I also convey warm greetings to the friendly people of Britain. I hope this is an vocabulary for many people. I think that the House should take strict action and act in union with regard to upholding the dignity and sanctity of a public position.